হিজাব বিতৰ্কৰ এবাৰ আহি পালেহি অসম। হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে এবাৰ ৰাজপথত হাতত তিৰংগা লৈ নামিল এগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকীৰ আহ্বান, দেশক বিশ্বত বদনাম নকৰিব, সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ নেহানিব হিজাব বিতৰ্কক। আৰু এই হিজাব বিতৰ্কই সমগ্ৰ দেশ তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে এবাৰ এই বিতৰ্ক পালেহি অসম আৰু ৰাজপথত হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে নামিল মুন্নী চেত্ৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ বাতৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। হিজাব বিতৰ্ক পালেহি অসম। অসমৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল মুন্নী চেত্ৰী। মুন্নী চেত্ৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতী। হাতত তিৰংগা লৈ হিজাব বিতৰ্কক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ নিদিবলৈ আহ্বান যুৱতীগৰাকীক। ভাৰতক বিশ্বত অপমানিত নকৰাৰো আহ্বান জনালে মুন্নী চেত্ৰীয়ে। মুছলমান দেশত বুৰখা পিন্ধিও সুৰক্ষিত নহয় মহিলা, এয়াও মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু ভাৰতত বিকিনি পিন্ধিও সুৰক্ষিত বুলি মন্তব্য কৰিছে মুন্নী চেত্ৰীয়ে। হিজাব নিপিন্ধি টিকটক বনাই বহু মুছলমান যুৱতী ভাৰতত সুৰক্ষিত হৈ আছে, এয়াও মন্তব্য কৰিলে। বদৰপুৰত দেশক বদনাম নকৰাৰ আহ্বানেৰে ৰাজপথত নামিল যুৱতী। হিজাব বিতৰ্ক এইবাৰ পাইছেহি অসম। বদৰপুৰত হাতত তিৰংগা লৈ ৰাজপথত নামিল এগৰাকী যুৱতী। আমি ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে হিজাব বিতৰ্ক, যি হিজাব বিতৰ্ক আছে, সেই হিজাব বিতৰ্ক এইবাৰ পালেহি অসম। ৰাজপথত মুন্নী চেত্ৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতী নামিল হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে। দেশক বদনাম নকৰাৰ বাবে আহ্বান জনালে, হাতত তিৰংগা লৈ আহ্বান জনালে এই যুৱতীগৰাকীয়ে যে দেশক বদনাম নকৰিব। হিজাব বিতৰ্কই সমগ্ৰ দেশ তুলপাৰ লগাই থকাৰ মাজতেই এবাৰ হিজাব বিতৰ্ক পালেহি ভাৰত। হিজাব বিতৰ্ক পালেহি অসম। আৰু অসমত এগৰাকী যুৱতী বদৰপুৰৰ ৰাজপথত নামিল হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে। মুছলমান দেশত বুৰখা পিন্ধিও সুৰক্ষিত নহয় মহিলা, ভাৰতত বিকিনি পিন্ধিও সুৰক্ষিত বুলি মন্তব্য কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে। আৰু ভাৰতত এনে বহু মুছলমান যুৱতী আছে যোনে হিজাব নিপিন্ধি টিকটক বনাই ভাৰতত সুৰক্ষিত হৈ আছে, এনে বহু মুছলমান যুৱতী। আৰু হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে, হিজাব বিতৰ্কৰে দেশক বদনাম নকৰাৰ আহ্বানেৰে ৰাজপথত নামিল এগৰাকী যুৱতী নামিল আৰু দেশক বদনাম নকৰাৰ আহ্বান জনালে এইবাৰ মুন্নী চেত্ৰী। আমাৰ হাতত ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে, ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চাওক কেনেধৰণে ৰাজপথত তিৰংগা হাতত লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। এনেধৰণে হিজাব বিতৰ্কৰ বিৰোধিতাৰে বদৰপুৰৰ ৰাজপথত হাতত তিৰংগা লৈ মুন্নী চেত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। দেশক বদনাম নকৰিব, দেশত মহিলা অসুৰক্ষিত বুলি ভাৱনা নিদিব, কাৰণ বুৰখা পিন্ধিও বহু মুছলিম দেশত মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, কিন্তু ভাৰতত মহিলা সুৰক্ষিত। ভাৰতত হিজাব নিপিন্ধি বহু মুছলমান মহিলাই যি টিকটক বনায়, সেই টিকটক বনোৱাৰ পাছতো সুৰক্ষিত বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मुस्लिम बहनें मेरे किस तरह बुर्खा पहन के, हिजाब पहन के घूम रहे हैं। कोई हिंदू भाई उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी दुख की बात है पिछले कुछ दिनों से कोई एक छोटा मुद्दे को कॉलेज से लेके इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है कि मुसलमानों को कपड़ा ही पहना नहीं दिया जा रहा है, ऐसे प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, देश को ऐसा सांप्रदायिक मत दिखाया कीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है। यहाँ में अभी भी मैं ये गौर से कह सकती हूँ कि इस्लामिक कंट्री में जिस तरह
महिला पर्दा करके भी सुरक्षित नहीं है। भारत में उससे भी ज़्यादा महिलाएं बिकिनी पहन के भी सुरक्षित है। मेरी बहना यूसुफ कमाल जो टिकटॉक बनाती है वो क्या हिजाब पहनती है, लेकिन आपने कभी सुना है कोई हिंदू भाई उन्हें छेड़छाड़ करते हुए? नहीं सुना ना, क्योंकि ये देश कभी कपड़े पे बात नहीं करता, ये देश कभी धर्म पे नहीं बात करता। लेकिन अगर मुद्दा उठ जाए अपने देश पे, अपने धर्म पे उठ जाए, तो ज़रूर कुछ हमारे जो छोटे बच्चे हैं यंग जनरेशन के, वो बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं भी कहूँगी ठीक है मुझे तो आपको थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन मेरा जैसा समझदार हर कोई नहीं, बच्चे लोग ऐसे समझेंगे। लेकिन हमें बड़ी दुख की बात यह है, बड़ी खेद है कि जिस तरह हमारे देश को सांप्रदायिक दिखाया जा रहा है, देश ऐसे सांप्रदायिक नहीं है, इसे रोकना चाहिए। मैं उच्च न्यायालय से भी ये आवेदन करूंगी, प्लीज़ आप लोग आगे आइए। हमारे देश को जो सांप्रदायिक बना के पूरा महल ख़राब कर रहे हैं, देश में एक वातावरण नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए, यही मैं अपील करूंगी। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मुस्लिम बहनें मेरे किस तरह बुर्खा पहन के, हिजाब पहन के घूम रहे हैं। कोई हिंदू भाई उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी दुख की बात है पिछले कुछ दिनों से कोई एक छोटा मुद्दे को कॉलेज से लेके इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है कि मुसलमानों को कपड़ा ही पहना नहीं दिया जा रहा है, ऐसे प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, देश को ऐसा सांप्रदायिक मत दिखाया कीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है। यहाँ में अभी भी मैं ये गौर से कह सकती हूँ कि इस्लामिक कंट्री में जिस तरह महिला पर्दा करके भी सुरक्षित नहीं है, भारत में उससे भी ज़्यादा महिलाएं बिकिनी पहन के भी सुरक्षित है। मेरी बहना यूसुफ कमाल जो टिकटॉक बनाती है वो क्या हिजाब पहनती है, लेकिन आपने कभी सुना है कोई हिंदू भाई उन्हें छेड़छाड़ करते हुए? नहीं सुना ना, क्योंकि ये देश कभी कपड़े पे बात नहीं करता, ये देश कभी धर्म पे नहीं बात करता। लेकिन अगर मुद्दा उठ जाए अपने देश पे, अपने धर्म पे उठ जाए, तो ज़रूर कुछ हमारे जो छोटे बच्चे हैं यंग जनरेशन के, वो बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं भी कहूँगी ठीक है मुझे तो आपको थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन मेरा जैसा समझदार हर कोई नहीं, बच्चे लोग ऐसे समझेंगे। लेकिन हमें बड़ी दुख की बात यह है, बड़ी खेद है कि जिस तरह हमारे देश को सांप्रदायिक दिखाया जा रहा है, देश ऐसे सांप्रदायिक नहीं है, इसे रोकना चाहिए। मैं उच्च न्यायालय से भी ये आवेदन करूंगी, प्लीज़ आप लोग आगे आइए। हमारे देश को जो सांप्रदायिक बना के पूरा महल ख़राब कर रहे हैं, देश में एक वातावरण नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए, यही मैं अपील करूंगी।